खुद को जयी करे, हमको मन की शक्ति देना। नमस्कार। आज 14 सितंबर 2020 आज हिंदी दिवस मनाते हैं। इस अवसर पर मैं सबका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। ഏറ്റവും സ്നേഹ ബഹുമാന്യരായ അധ്യാപകരെ, പ്രിയമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട രക്ഷാകർത്താക്കന്മാരെ, ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ 14 ഹിന്ദി ദിനമായിട്ട് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം ആചരിക്കുകയാണ്. ഹിന്ദി ഭാഷയുടെ പ്രാധാന്യം എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതിനും ഹിന്ദി ഭാഷ കുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ച് നന്നായി പഠിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഈ സന്ദർഭം നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്. 1949 സെപ്റ്റംബർ 14 നമ്മുടെ രാജ്യം ഹിന്ദിയെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രഭാഷയായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് 1953 മുതൽ എല്ലാ വർഷവും സെപ്റ്റംബർ 14 ഹിന്ദി ദിനമായിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യം ആചരിച്ചു വരുന്നു. ഈ സെപ്റ്റംബർ 14 മുതൽ ഒരാഴ്ചക്കാലം, ചിലയിടത്ത് 2 ആഴ്ചക്കാലം വിവിധങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ആകെ ഹിന്ദിയോട് ഒരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടവും ഹിന്ദി ഭാഷയോട് ഒരു ആഭിമുഖ്യവും ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയായിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളും ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ ഈ വർഷം ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹിന്ദി അധ്യാപകരായ ശ്രീകല ടീച്ചർ, സിസ്റ്റർ ലിസമ്മ ജോബ്, പ്രിയമുള്ള ജോഷി സാറ്, സോണിയാമ്മ ടീച്ചർ, ഇവരുടെ എല്ലാ നേതൃത്വത്തിൽ ഹൈസ്കൂൾ തലത്തിലും UP തലത്തിലും നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. കവിത രചിക്കുക, കഥ പറയുക, ഉപന്യാസം എഴുതുക, പിന്നെ പോസ്റ്റർ നിർമ്മിക്കുക തുടങ്ങി വിവിധങ്ങളായ പ്രവർത്തന പരിപാടികൾ കുട്ടികൾ ചെയ്തു വരുന്നു. വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് കുട്ടികൾ പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെയ്തു. അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ഹിന്ദി അധ്യാപകരെ ഞാൻ പ്രത്യേകം അനുമോദിക്കുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയ ക്ലാസ് അധ്യാപകരെ പ്രത്യേകം അനുമോദിക്കുന്നു. അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും അവർക്ക് പിന്തുണയും സഹായവും നൽകി അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ള രക്ഷിതാക്കളെ ഞാൻ പ്രത്യേകം അനുമോദിക്കുകയാണ്. ഇവരെ എല്ലാവരേക്കാളും ഉപരിയായി ഹിന്ദി ദിന പരിപാടികളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്ത എല്ലാ കുഞ്ഞുമക്കളെയും അനുമോദിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേരുന്നു. ഇനിയും നമ്മുടെ വിദ്യാലയം നടത്തുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നിങ്ങൾ പങ്കാളികളാകണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹിന്ദി ദിനത്തിന്റെ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് സാറ് ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हिंदी दिन, हिंदी दिन, हिंदी दिन, हिंदी दिन, हिंदी दिन, हिंदी दिन। हिंदी सुंदर भाषा है, मन की मादा भाषा है। हिंदी हमारी ज्ञान है, भारत देश की शान है। मेरा अभिमान हिंदी है, हिंदुस्तान की पहचान है, हिंदुस्तान की शक्ति है। राष्ट्रभाषा हिंदी है, माम की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी, एकता की
भाषा है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंदी। प्यारे बच्चों, आज 14 सितंबर है। संपूर्ण भारत इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत देश में अधिकतम लोग हिंदी भाषी है। इसी कारण 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। हिंदी एक सरल भाषा है। किसी को भी इसे बोलने और समझने में परेशानी नहीं होती। हम सभी को हिंदी भाषा का अधिक से अधिक उपयोग करना होगा, तभी हम अपनी भाषा का सही अर्थ में सम्मान कर सकते हैं। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। खुशियों का रंग देती, दिल की तरंग देती, मन की उमंग देती, धरती की मुस्कान देती, ऊपर ये आसमान देती। भारत की है बोली हिंदी, हम सबकी हम जोली हिंदी। हिंदी की है बात निराली, ये है हर भाषा से प्यारी। पुरखों की है ये सौगात, सब करते इसकी ही बात। अनपढ़ हो या शिक्षित कोई, इससे है परिचित हर कोई। हम सबकी है ये अभिलाषा, हिंदी हो हम सबकी भाषा। सदा करें इसका सम्मान, इससे है भारत का मान। सदा करें इसका सम्मान, इससे है भारत का मान। आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको नमस्कार। मैं गादा। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों के जय से पहले खुद का जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों के जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके। भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके। दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके। दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके। झूठ से
बचे रहे सच का तंबरी, झूठ से बचे रहे सच का तंबरी, जो दूसरों के जी से पहले खुद को जी करे, हमको मन की शक्ति देना मन विजयी करे, दूसरों के जय से पहले खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना। देश हमारा चमके देश जगमग तारा, देश हमारा सत्या ही से तारक मारा, देश हमारा बलिदानों ने सैव नवारा, देश हमारा हम हैं अपनी ज्ञान सब प्यारा, देश हमारा सागर ने जिसका प्यार सो प्यारा, देश हमारा सत्या के गए देश प्यारा, देश हमारा हम हैं अपनी ज्ञान से प्यारा। प्यारे अम्मा मेरी मीठे मीठे गीत सुनाती, तासा दूध पिलाती, कर कर का गाना देती, मेरी सारी बातें सुनती, अच्छी सीखे देती, सबको सुनाती सुबह जगाती, कितनी प्यारी अम्मा मेरी, कितनी प्यारी अम्मा मेरी, कितनी प्यारी अम्मा मेरी। हिंदी हिंदी भारत माँ का बिंदी, हिंदी 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 भारत माँ का बिंदी, हिंदी भारत माँ का बिंदी, हिंदी भारत माँ का बिंदी, हिंदी से सजदी भारत की भाषाएं, सब मिलकर गाओ भारत की भाषाएं, हिंदी भारत माँ का बिंदी, हिंदी भारत माँ का बिंदी, भारत में के बिंदी, भारत में के बिंदी, हिंदी 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 विश्व भगति गले हिंदी 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 भारत माँ का हिंदी। नमस्कार, मेरा नाम अलीना जेकब। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं सभी मित्रों का हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई। हिंदी हमारा पंच है, हिंदी हमारा जान है, भारत देश की शान है, एकता की भाषा हिंदी, हिंदुस्तान का जान है हिंदी, हिंदी सीखे देश में एकता लाए, हमारा एकते हिंदी, हिंदी सुंदर भाषा है, मन को बता भाषा है, भारत माँ की शान है। जय हिंद, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम दुर्गा है। प्यारी प्यारी अम्मा मेरी मीठे मीठे गीत सुनाती, तासा तासा दूध पिलाती, तरह तरह का खाना देती। प्यारी प्यारी अम्मा मेरी मीठे मीठे गीत सुनाती, तासा तासा दूध पिलाती, तरह तरह का खाना देती। मेरी सारी बातें सुनती, अच्छी सीखे देती, संग सुलाती सुबह जगाती, कितनी प्यारी अम्मा मेरी। मेरी सारी बातें सुनती, अच्छी सीखे देती, संग सुलाती सुबह जगाती, कितनी प्यारी अम्मा मेरी, कितनी प्यारी अम्मा मेरी। धन्यवाद।
मम, खुशियाँ देते साथी मम, प्यारी जग से प्यारी मम, खुशियाँ देते साथी मम, चलना हमें शिगाती मम, मन से हमें दिगाती मम, चलना हमें शिगाती मम, मन से हमें दिगाती मम, सबसे मीठा बोल है मम, दुनिया में अनमोल है मम, सबसे मीठा बोल है मम, दुनिया में अनमोल है मम, प्यारी जल से प्यारी मम, खुशियाँ देते साथी मम। शुक्रिया। हमको मन की शक्ति देना, मन विजयी करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजयी करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके, दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके। झूठ से बचे रहे, सच का दम भरे, झूठ से बचे रहे, सच का दम भरे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजयी करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजयी करे। आदरणीय गुरुजन और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कीर्ति दास हूँ। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको हिंदी दिवस पर भाषण देने जा रही हूँ। हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। तब से हर साल यह दिन हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यह दिन पूरे उत्साह के साथ भारतवर्ष में मनाया जाता है। हिंदी दिवस के दौरान कई कार्यक्रम होते हैं। हिंदी दिवस पर हिंदी के प्रति लोगों को उत्साहित करने हेतु पुरस्कार समारोह भी आयोजित जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को एहसास दिलाना है कि जब तक वे हिंदी का उपयोग पूरी तरह से नहीं करेंगे तब तक हिंदी भाषा का विकास नहीं हो सकता है। हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों की पहचान भी है। हमें अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी पर गर्व करना चाहिए। सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमको मन की शक्ति देना, मन विजयी करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजयी करे,
दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके। भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके। दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके। दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके। झूठ से बचे रहे, सच कदम भरे। झूठ से बचे रहे, से सच कदम भरे। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। भाषा हिंदी अगर राष्ट्र है तो राष्ट्रभाषा दी होगी। भारत विविधताओं का देश है। भारत बहुभाषाई राष्ट्र है। यह अनेक जातियों, प्रांतों, भाषाओं और धर्मों में बांटा हुआ है। राष्ट्रीय रक्षा के लिए राष्ट्रभाषा अत्यंत आवश्यक है। इसलिए स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा का गौरव हिंदी को प्राप्त है। आजकल हिंदी भाषा और साहित्य का अच्छा विकास हो रहा है। हिंदी एक सरल भाषा है। राष्ट्रभाषा के पद पर हासिल होने को लिए हिंदी ने जितना प्रयास उठाया है, ये जानने के लिए हमें भारतीय इतिहास के नाहों में जाना पड़ेगा। यह तो सत्य सिंह है कि भारत की एकता के लिए हिंदी ने बहुत कुछ किया है। यह एक आसान भाषा है। इसमें विचारों को व्यक्त करना आसान कम है। आज हिंदी साहित्य भारतीय साहित्य भंडार की अमूल्य धरोहर है। इन्हीं कारणों से इसमें कोई रंग नहीं कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है और रहेगी भी। धन्यवाद। आदरणीय स्कूल का संचालक, आदरणीय प्रिय अध्यापकों और मेरे प्रिय मित्र, मेरा नाम अभिनव हरिकुमार है। आज मैं हिंदी दिवस के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। भाषा के द्वारा मनुष्य अपने विचारों के आदान प्रदान करता है।
भारत भी अनेक राज्य है। उन राज्यों की अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। इस प्रकार भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है, लेकिन उसकी अपनी एक राष्ट्रभाषा है हिंदी। जब हमारे विद्यार्थी हिंदी प्रेमी बन जाएंगे तब हिंदी का दरबार प्रसार होगा। हिंदी दिवस के अवसर पर हमें संकल्प लेना चाहिए। धन्यवाद। पिता का नाम प्यारी माँ। प्यारी प्यारी अम्मा मेरी मीठे मीठे गीत सुनाती, तासा तासा दूध पिलाती, तरह तरह का गाना देती, मेरी सारी बातें सुनती, अच्छी अच्छी सीखें देती, संग सुलाती सुबह जगाती, इतनी प्यारी अम्मा मेरी। धन्यवाद। राष्ट्रभाषा हिंदी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा 1917 में भरूच में सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के मान्यता प्रदान की गई थी। हिंदी को देवनागरी लिपि में राजभाषा का दर्ज दिया गया। 1953 से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रभाषा जो भाषा समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा है। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा होती है। हिंदी ने देश में एकता लाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। धन्यवाद। मेरा नाम मेरी सानिया। आदरणीय प्रधान अध्यापक जी, अध्यापिकाओं और सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। भारत में हर साल 14 सितंबर हिंदी दिवस को मनाया जाता है। अब सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। हमें अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान करना चाहिए। ധന്യവാദം. നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് മേരി സാനിയ. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ അമ്മയെ പറ്റിയുള്ള കവിതയാണ് ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത്. प्यारी जग से न्यारी माम, गुशिया देती सारी माम, चलना हमें सिखाती माम, मंजिल हमें दिखाती माम, सबसे मीठा बोल है माम, दुनिया में अनमिल है माम, गाना हमें गिलाती है माँ, प्यारी जग से न्यारी माँ, गुशिया देती सारी माँ। नमस्कार, मेरे नाम दिया। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निटर होटे नहीं, तुम निटर टोटे वही, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, मेद गरजते रही, मेद बरसते रही,
बिजलियाँ खड़क उठे, बिजलियाँ तड़क उठे। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। आदरणीय गुरुजनों, सबको मेरा प्यारा प्रणाम। हिंदी हमारा राज्य भाषा है। भारत में हिंदी सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाला भाषा है। भारत में 4,000 लाख से अधिक लोगों ने अपने मातृभाषा के रूप में हिंदी का उल्लेख किया। हिंदी बोलने वाली अधिकांश आबादी उत्तर भारत में केंद्रित है। हिंदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और झारखंड सहित कई राज्यों की आधिकारिक भाषा है। हिंदी दिवस हमारे सांस्कृतिक जड़ों के देखने, फिर से देखने और अपनी समृद्धता का यज्ञ मनाने का दिन है। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें इसका आदर और उसका मूल्य समझना चाहिए। इतना कहकर मैं अपना छोटा सा भाषण समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। माननीय अतिथि महोदया, सदा में उपस्थित सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। भाषा के द्वारा मनुष्य अपने विचारों को आदान प्रदान करता है। अपनी बात को कहने के लिए और दूसरे की बात को समझने के लिए भाषा एक सतत साधन है। जब मनुष्य इस पृथ्वी पर आकर हो समृद्ध है, अपनी भाषा में बोलना सिखाने है। इस तरह भाषा सिखाने का यह काम लगातार चलना रहता है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अलग अलग भाषा एवं होती है, लेकिन उनका राज्यकार्य जिस भाषा में होता है और जिस जिन संपर्क की भाषा होती है, उससे ही राष्ट्र भाषा का दर्ज प्राप्त होता है। भारत भी अब एक अनेक राज्य है। उन राज्यों की अपनी अलग अलग भाषा एवं है। इस प्रकार भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है, लेकिन उसकी अपनी एक राष्ट्रभाषा है हिंदी। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को यह गौरव प्राप्त हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत का अपना संविधान बना। हिंदी को राजभाषा का दर्ज दिया गया। यह माना कि धीरे धीरे हिंदी अंग्रेजी का स्थान ले लगी। इन शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हूँ। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद माँ। अपने दिन तारोतांगम व मंगलमय हो। धन्यवाद। हिंदी 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 भारत माँ का बिंदी। हिंदी 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 भारत माँ का बिंदी। हिंदी भारत माँ का बिंदी। हिंदी भारत माँ का बिंदी। हिंदी से सजती भारत माँ की भाषा है। सब मिलकर गाएं भारत की गाथाएं। हिंदी भारत माँ का बिंदी। हिंदी भारत माँ का बिंदी। भारत माँ की बिंदी। भारत माँ की बिंदी। हिंदी 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 विश्व बजनी काल हिंदी। हिंदी 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 भारत का मन बढ़ाई हिंदी। तेरी आँखों की दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी था, बिछड़ना भी जरूरी था। तेरी आँखों की दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी था, उतरना भी जरूरी था। जरूरी था कि हम दोनों तो बातें आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ू कहाँ, बिछड़ना भी जरूरी था। तेरी आँखों की दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी था, बिछड़ना भी जरूरी था। बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज को तुमने खुदा का
उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी था, बिछड़ना भी जरूरी था। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे, राष्ट्रभाषा हूँ मैं, अभिलाषा हूँ मैं, राष्ट्रभाषा हूँ मैं, अभिलाषा हूँ मैं, एक विद्या का घर पाठशाला हूँ मैं, मेरा घर एक मंदिर, बसा लो मुझे, मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे, देख इस भीड़ में मैं कहाँ खो गई, ऐसा लगता है अब नींद से सो गई, प्यार की एक तिपक से जगा लो मुझे, मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। आज जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ वह सविता पाटिल की लिखी कविता है। जिद करूँ कि दुनिया बदल जाए, जिद करूँ कि दुनिया बदल जाए, जिद हो ऐसी जो गलत को सही कर जाए, जिद करूँ कि दुनिया बदल जाए, जिद हो ऐसी जो गलत को सही कर जाए, सहरा में नदियाँ बहन लगे, सहरा में नदियाँ बहन लगे, बजर दरा भी हरी हो जाए, जिद हो हर भूखे को रोटी मिले, जिद हो हर भूखे को रोटी मिले, जिद हो ऐसे जो रातों को हंसा जाए, जिद हो हर भूखे को रोटी मिले, जिद हो ऐसा जो रातें को हंसा जाए, हो साला तो किसी की टूटती उम्मीदों को, हो साला तो किसी को टूटती उम्मीदों को, किसी के डरते का कदमों को, किसी के डरता के कदमों को, जिद हो जो आदि में दया जलता दे, जिद हो जो आदि में दिया जलता दे, जिद हो ऐसी जो रास्तों के लिए चटना हिलते हैं, जिद हो जी आदि में दया जलता, जिद हो ऐसी जो रास्तों के लिए चटना हिलत है, हर बात सिर झुकाकर मलेना मुश्किल है, हर बात सिर झुकाकर मलने मुश्किल है, कई बार जिद करा भी ज़रूरी है, कई बार जिद करा भी ज़रूरी है, जिद हो कि किसत न चिपक कवि, जिद हा सत्याग्रह नरे कवि, जिद हो हार जिद में बदले जाए, जिद हो हार जिद में बदले जाए, जिद करम कठिन सरद हो जाए, जिद करम कठिन सरद हो जाए, जिद करम कि उनके एक ही जाए, जिद करम कि उनके एक ही जाए, जिद करम कठिन सरद हो जाए। भाषा हिंदी राष्ट्रभाषा जो है, जो भाषा समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा है, जो भाषा समस्त राष्ट्र में व्यंजन को विचार विनिमय का माध्यम है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। स्वतंत्र समागम का दौरान राष्ट्रभाषा की आवश्यकता होती है। यह कारण है हिंदी स्वतंत्र समागम का दौरान राष्ट्रभाषा बनी। राष्ट्रभाषा समाज की सांस्कृतिक सदर पर देश में जोड़ना काम का करते हैं। 1953 में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रभाषा सारे देश में संवर्ग भाषा होती है। हिंदी ने देश में एकता लाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धन्यवाद। सबको नमस्कार। आज मैं राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे में भाषण बताना चाहती हूँ। भारत हमारा देश है, वह विशाल देश है। उसमें अनेक राज्य है। प्रत्येक राज्य की अपनी प्रादेशिक भाषा है। राज्य के अंदर प्रादेशिक भाषा से काम चलता है, लेकिन राज्यों के बीच व्यवहार करने के लिए एक भाषा की आवश्यकता है। देश को एक संपर्क भाषा की आवश्यकता है। संपर्क भाषा सरल होनी चाहिए। देश के अधिकांश लोगों की भाषा भी होनी चाहिए।
हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। इसका साहित्य संपन्न है। इसमें सभ्यता और संस्कृति झलकती है। हिंदी भारत की जनता को एक सूत्र में बांधने वाली भाषा है। हमें जरूर हिंदी पढ़नी चाहिए। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी के भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। यह निर्णय भारत के संविधान द्वारा स्वीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अनुच्छेद देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक गुण। राष्ट्रभाषा का अर्थ यह है कि किसी देश की राष्ट्रभाषा देश में बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को माना जाता है। इतना कहकर मैं यह भाषण समाप्त। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। नमस्ते आदरणीय गुरुजन, प्रिय दोस्तों। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। बहुत आसानी से हिंदी पढ़ सकते। दुनिया के सामने हमारा देश की कीर्ति और प्रौढ़ी बढ़ाने वाले अनेक ऐतिहासिक रचनाओं से संबद्ध है हिंदी का साहित्य क्षेत्र। इस क्षेत्र में अनेक लेख, उपन्यास, कविताएं, यात्रा विवरण आदि है। छोटी कक्षाओं से हिंदी पाठ्य विषय है। रूप निहित की गई है। हिंदी आसानी से पढ़ने और समझने को बच्चों को वह बहुत सहायक है। हम सबसे गर्व है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा ही नहीं पहचान भी है। शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। भाषण आदरणीय प्रधान अध्यापक, प्यारे अध्यापक दोस्त, वाहन अध्यापक और मेरे प्यारे बच्चों, सबको नमस्कार। आज सितंबर 14 हिंदी दिन है। इस दिन बड़ी खुशी से मनाते हैं। हमारी छात्रों अपने घर में बैठकर कई प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लिया। सबको इस अवसर में धन्यवाद देते हैं। जय हिंदी, जय भारत।